Hello everyone, good morning. Once again, welcome to you e-learning class. Myself Virendra Maurya. This is the second part of chapter 1 CBSE 10th, A Letter to God, written by G.L. Fentz. First chapter I have already discussed. So students, this is the second part. This is a picture of Lencho when his total crop has been destroyed by the hailstone. So he stood in the middle of his field and thought about what happened after that. When the hailstone passed out, then he thought about the survival of the fittest. So the students, before watching this video, you have to keep a pen and a rough to write down the meaning and the explanation of this story. So the text here. But in the heart of all who live in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from a God. Here the lines the writer describe, when his total crop has been destroyed by the hailstone, the Lencho has only a single hope, help from a God. He said, don't be so upset even though this seems like a total loss. He did not want to upset when his crop has been destroyed, but he wanted to decided ideas. Remember, no one dies of hunger. That's what they said. No one dies of hunger. He said that no one dies of hunger except after total crop has been destroyed. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. He has only one ideas and hope from the help of God, whose eyes as he has been instructed see everything, even what do deep in one conscious. He thought much about what happened after that, but he had ideas. He had a explanatory method that help from God. Here the characteristic of the Lencho. Lencho was an ex of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Here the describe about the chief qualities of Lencho. He was a farmer, worked like an animal, but he knew how to write a letter. The following Sunday at daybreak he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. He had no any other way help from except help from God. So he write a letter to God. He describe about what happened with himself. He write God. He wrote, if you don't help me, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर. वह कहता है कि अगर भगवान आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा जो पूरा परिवार है वह भूख से हम लोग मर जाएंगे. आई नीड 100 पैसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स. वह लिखता है, इफ़ यू गॉड डोंट हेल्प मी एंड माई फैमिली वुड गो हंगरी अंटिल द crop comes. You have send me a money especially for the 100 passes because the hailstone. क्योंकि ओलों के कारण उसकी जो फसल बर्बाद हुई है उसके बदले में वह भगवान से 100 पैसेस चाहता है ताकि वह दोबारा से फसल उगा सके और पुनः जो है जिंदा रह सके. He wrote to God on the envelope. और जो लिफाफा होता है उसके ऊपर लिखता है टू गॉड, यानी जो पत्र होता है बच्चों वह लेंचो भगवान को भेजता है. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड. और बिना किसी ट्रबल के वह टाउन को जाता है और वहाँ पे पत्र को लेटर बॉक्स में डाल देता है. The post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. One of the employees who was a postman had also helped at the post office went to his boss laughing heartily. When the one of the employees of the post office got such type of a letter, he laughed heartily because in his career never got such type of a letter where the addresses to the God. He helped at the post office, went up on up the boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career such postman had known that address the postman of fate amiable. But the postmaster of this office was very clever. He knew what happening. A fate amiable means a friendly behave like that.
जो पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर होता है वो एक फ्रेंडली बिहेव करता है और वह समझ जाता है कि हाउ अ मैन कम्प्लीटली फेथ इन अ गॉड, कि कैसे एक आदमी जो होता है वो भगवान के प्रति उसका कितना विश्वास है कि उसकी फसल बर्बाद होने की वजह से वो भगवान से 100 पैसे चाहता है। Also broke out laughing but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. लेकिन वह भी हंसने लगता, लेकिन थोड़ी देर बाद अपनी हंसी को गंभीरता में तब्दील कर देता है और लेटर बॉक्स को अपने डेस्क के ऊपर पटकता है। कमेंटेड करता, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग ऑफ ए करेस्पॉन्डेंस विथ अ गॉड, कि कैसे एक व्यक्ति का जो करेस्पॉन्डेंस है वह गॉड हो सकता है। वह केवल अगर है तो केवल फेथ है, वह एक केवल विश्वास है। दिस इज अ जस्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। लेंचो राइट, सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in the postmaster came with an idea. पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आता है। ही डिड नॉट वांट टू सीक द राइटर्स फेथ इन अ गॉड, वह नहीं चाहता है कि लेंचो का जो विश्वास है भगवान के प्रति हटे। इंश्योर द लेटर, वह पत्र का जवाब देना चाहता है। बट व्हेन ही ओपन इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन जब वह पत्र को ओपन करता है तो पाता कि इस पत्र में कुछ पैसों की डिमांड की गई है, इंक और पेपर की भी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। फिर उसके बाद उस समस्या का हल निकालता है। वो अपने एम्प्लॉयज़ के पैसे को कलेक्ट करता है and himself gave part of his salary and collected the money from his friends and decided to send all these money through the charity through the mailbox to the लेंचो। फिर सारे पैसे को कलेक्ट करके वह लेंचो के पास भेजना चाहता है। पोस्टमास्टर नहीं चाहता है कि लेंचो का विश्वास भगवान के प्रति हटे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसेस, लेकिन इन तमाम सारे कर्मचारियों के पैसे कलेक्ट करने में भी 100 पैसे नहीं कलेक्ट हो पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन आधे से भी ज़्यादा, इट मीन्स दैट 70 पैसेस they were able to send him, I mean Lencho, 70 pesos. He put the money in an envelope and addressed to a Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature of a God. फिर वे लोग पैसे को एक लिफाफे में कलेक्ट कर देते हैं, फिर उस पर भगवान का सिग्नेचर कर देते हैं, फिर लेंचो की तरफ जो है लोग भेज देते हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a लेटर फॉर हिम। अब प्रत्येक रविवार जो है से पहले आता है उस पोस्ट ऑफिस पे और पूछता क्या भगवान के माध्यम से उसके पास कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु कम फॉरवर्ड। यहाँ पर जो है पोस्टमास्टर अपने विंडो से देखता रहता है, जबकि जो पोस्टमैन होता है वह लिफाफा लेंचो के हाथ में पकड़ा देता है। This is a very creative ideas. How a writer's faith in a God. The postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, look on from his office. वो अपने ऑफिस से देखता रहता है कि what happened. लेंचो से not the slightest surprise on seeing the money. लेकिन लेंचो जब पैसे को देखता है फिर भी थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है। Such was his confidence, क्योंकि उसका विश्वास होता है कि God never deny to give him a money, but he became angry when he counted the money. लेकिन जब लेंचो पैसा काउंट करता है तो वह पूरी तरह से एंग्री हो जाता है। God could not have made a mistake. वह कहता है कि भगवान हमारे साथ इतना बड़ा गलत नहीं कर सकते। Nor could he have denied लेंचो what he had request, कि लेंचो ने भगवान से रिक्वेस्ट की है और उसे भगवान मना नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। फिर जो होता है लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस के पास में जाता है, वहाँ पे इंक और पेपर लेता है और पुनः दोबारा जो पेपर लेटर भगवान के लिए लिखने के लिए वह रेडी हो जाता है। वो पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाता है एंड ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भावों को चढ़ा करके ताकि अच्छी आइडियाज़ को लिख सके। और क्या लिखता है,
When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. When he completed the letter, then he got a ticket and licked and then affixed to the letter and put it into the letter box. उसके बाद जब वह पत्र लिख लेता है फिर उसे वह जो है लेटर बॉक्स में डाल देता है। बट देखने वाली बात है कि इस बार सेकेंड टाइम लेंचो ने अब इस पत्र में क्या लिखा है, आइए देखते हैं बच्चों। द एनवलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और फिर उसे जो है ब्लो करके अपनी फूंक मार करके उसे जो है फिस्ट चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट एंड सीट, फिर उसके बाद पोस्ट मास्टर के पास जाता लेटर, फिर उसे ओपन करता और देखता है क्या लिखा हुआ है। अब द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे रीच मी, ही भगवान, आपने मुझे 100 पैसे भेजा था लेकिन मेरे पास केवल 70 पैसे ही पहुंचे। सेंट मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, भगवान जो बाकी बचे हुए पैसे हैं प्लीज मुझे आप भेज दीजिए क्योंकि उन पैसों की मुझे सख्त जरूरत है। But don't send it to me through the mailbox because the post office employees are a bunch of crooks. फिर वह कहता है but God don't send it through the mailbox because all the employees of the post office are the bunch of crooks. इसका मतलब यह हुआ कि वह नहीं चाहता कि इस बार जो बाकी बचे पैसे हैं वह मेल बॉक्स के माध्यम से मेरे पास पहुँचे क्योंकि भगवान ने मुझे 100 पैसे भेजे थे, मेरे पास केवल 70 पैसे पहुँचे और जो 30 पैसे थे वे सभी जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है इन लोगों ने चुरा लिया है। तो है ना ह्यूमरस स्टोरी कि कैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय लेंचो की मदद करते हैं लेकिन लेंचो को जो विश्वास नहीं होता इन लोगों में क्योंकि उसके भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास है, वह इन कर्मचारियों पर विश्वास नहीं करता है और वह कहता है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं पोस्ट ऑफिस के सभी लोग चोर हैं। तो ये बड़ी अच्छी स्टोरी थी जिसे लेकर के हम आप लोगों के बीच आए। अब आप लोग क्या करेंगे, स्टोरीज को जो है स्टेप बाय स्टेप स्टेंजा बाय स्टेंजा आप लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, वर्ड मीनिंग को राइट डाउन करेंगे, इसकी थीम हो गई, इसकी एनालिसिस हो गई, इसमें क्या ह्यूमरिस्टिक स्टाइल है, इसके जो कैरेक्टर्स हो गए सारी चीज़ को आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकेंगे। तो इस वीडियोस को बनाने के लिए मैंने शॉर्ट सिंपल और कंपैरेटिव आइडियाज़ का प्रयोग किया है। थोड़ी स्पीड है लेकिन कोशिश करिएगा आप लोग इसको कम्प्लीटली